جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے، یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر اس سلسلے میں حکومت سے بھی، عدلیہ سے بھی، اور سب سے زیادہ میڈیا کے لوگ جن کو ہر آدمی سنتا ہے، ہر آدمی اس میں بلیو کر رہا ہے، اس کو اسی اچھائی کے ساتھ اٹھائیں۔ تو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام تھا، لیکن فیصلہ آتے ہی کوئی ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا، ہم مسلمان بھائیوں سے صبر کی اپیل کرتے ہیں، تحمل کی اپیل کرتے ہیں، لیکن کب تک اپیل کریں گے اگر حکومت اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا۔ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کہاں روئیں گے؟ رام مندر کے افتتاح کے پس منظر میں گیان واپی مسجد کا معاملہ مزید تنازعات میں گھرتا ہوا لگ رہا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں اس حالت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیزی سے کارروائی کر رہی ہیں اور ماحول میں ایک نمایاں کشیدگی بڑھ رہی ہے، جس میں عدلیہ بھی انتہا پسندی کی حمایت میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس موقع پر مسلمان رہنماؤں نے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ خصوصی بات یہ ہے کہ پریس کلب آف انڈیا نے انہیں اپنے اقدامات میں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دینے سے معذرت کر دی۔ ایسے میں مسلم رہنماؤں کی گفتگو سنیں۔ جامع مسجد بنارس میں جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس واقعے نے اس ملک 20 کروڑ مسلمانوں کو، بلکہ ملک کے سنویدھان پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے، انصاف پسند تمام شہریوں کو کافی صدمہ پہنچایا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی، دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی۔ جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانونداں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ فیصلہ ہے 1991 کا ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا۔ بعض شرپسند لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے، یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرے، اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ گئے تھے عدالت میں اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم نے طے کیا ہے صدر جمہوریہ جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وفد ملاقات کرے گا۔ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری
जिन कोर्टों के ऊपर है वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। सन 91 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, और हम पूरी कुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कवानीन और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनकी किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है, जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा। तो मुल्क कैसे चलेगा? कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अकलियत का फर्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है, तो उसके अंदर, उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, समझदार और बड़े बड़े वकला ये बात कह रहे हैं कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा। तो भाई लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए, यही मसला है। ये मुल्क का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। मरकज़ कहा जाता था कि लौट करके वहीं जाना है, किसी भी तरह का मसला हो, तो वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसमें ना प्रोसीजर को पूरा किया गया है, ना अदालती जो प्रोसीजर होते हैं, उसके मदारिज होते हैं, उसको किसी तरीके से पूरा किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत से भी, अदलिया से भी, और सबसे ज़्यादा मीडिया के लोग, जिनको हर आदमी सुनता है, हर आदमी उसमें बिलीव कर रहा है, उसको उसी अच्छाई के साथ उठाएं ताकि आपके अंदर, मीडिया को चौथा सुतून भले कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कलम गोयत के मन शाहे जहानम, यही सबसे बड़ा बादशाह है, यही सबसे बड़ा हाकिम है जो इंसाफ के
के तराजू को बरकरार रख सकता है। आपके ज़रिए से देशवासियों को, एक एक फ़र्द को उसी अंदाज में ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम अमन व शांति के साथ रहते हुए, भाईचारा को बरकरार रखते हुए हम हकदार को उसका हक पहुंचाएं। और जिला अदालत ने जो फैसला किया कि तहखाने में जो साउथ सेलार है उसको हमारे हिंदू भाइयों की इबादत के लिए उन्होंने दे दिया है, ये अदलिया के उसूलों और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। वो तहखाना भी और तहखाने के ऊपर भी जो मस्जिद है वो बिल्कुल एक मुकम्मल मस्जिद है, और जो ASI की रिपोर्ट वगैरह है वो दावा है, वो हकीकत नहीं है, वो कतई सबूत नहीं है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखे बगैर अदलिया ने जो फैसला दिया है, जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, वो जुडिशरी के उसूलों के खिलाफ है, और उससे जो मुल्क भर में मैसेज गया है कि अदलिया का फैसला जानिबदार है, अदलिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इससे अदलिया का विकार, अदलिया की इज्जत, अदलिया का एहतराम ये मजरूह हुआ है, और अदलिया पर जो अवाम को भरोसा होना चाहिए वो भरोसा टूट रहा है। अब ये मसला सिर्फ ज्ञानवापी की या जामे मस्जिद बनारस की इस मस्जिद ही का नहीं, जो हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी क्या हिमायत है, उनका कोई सपोर्ट है, या अदलिया उनके इशारों पे काम कर रही है, ये हमें मालूम नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। उसी के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि उस फैसले में कहा गया कि 7 दिन के अंदर इसका इंतजाम कर, लेकिन फैसला आते ही फौरी एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव हो गया कि दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स काट के किया। तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान, यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जुडिशरी, ये सब यहाँ पर एक इंसाफ के तकाज़ों को समाज में सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो रहा है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को खासतौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खासतौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरूह हो। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी, और लोग बहुत परेशान हैं। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि वो आगे आए, और ये जो फिरका परस्त तंगनजर जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही? तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान हो। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एक तरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है, फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जिससे कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते इस तरह का फैसला दे दिया, और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पे बात नहीं कर सकते हैं? सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे?
वहाँ भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चले, और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ न कुछ हाथ है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।